Hello, my dear students of class 8. Dear student, I am Rajendra Rai from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, presenting this digital video for your learning. Dear student, in the previous video, you have learned some part of the combustion and flame, that is chapter 5 of class 8 science. And dear student, in this video, you will be able to learn the remaining part of the chapter, that is the types of the combustion. So dear student, the combustion takes place in the different conditions under the different circumstances, and in the different circumstances combustion occur, and there are 4 types of the combustion. Number 1, slow combustion. Number 2, rapid combustion. Number 3, spontaneous combustion. And number 4, explosive combustion. So dear student, let us start one by one. Number 1, that is the combustion, slow combustion. So these are the types, and the slow combustion, that you can understand this slow combustion like that when a combustible substance, मतलब जो जलने वाली चीज है, that undergoes the combustion without any ignition or external heat, and produce very little heat, but no light is produced in this process. For example, known as the slow combustion, that is the digestion and respiration. So dear student, in the animal body there is a slow combustion, means there is no production of there is no need of the any ignition temperature, there is no occurrence of the external heat, or there will be not production of any light. So these are called the slow combustion, and the example of the slow combustion is the digestion and respiration in the animal body, this digestion and respiration. So these two processes are called as the slow combustion. तो बात आपके समझ में आ गई होगी. And now dear student, come to this next, that is the rapid combustion. Rapid combustion you can understand like this rapid combustion, that is the combustion in which the substances catch fire, substances burn rapidly to produce the heat and light. इसमें क्या होता है, कोई भी वस्तु जो होती है जल्दी से आग पकड़ लेती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है बहुत जल्दी समय में, कम समय में, that is known as the rapid combustion. In the rapid combustion, extreme heat must be given so that the substance can burn. तो रैपिड कंबस्शन में क्या होता है, एक्सट्रीमली उसको हीट किया जाता है सबस्टेंस को, जिससे कि वो जल्दी से आग पकड़ ले और जल जाए. फॉर एग्जांपल द बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस. तो कुकिंग गैस एलपीजी जैसे जलती है इन ए गैस स्टोव, एंड बर्निंग ऑफ पेपर एंड केरोसिन ऑयल, बर्निंग ऑफ वैक्स एक्सेट्रा, मोम वगैरह जो जलती है तो काफ़ी हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है. तो ये हो गया एग्जांपल रैपिड कंबस्शन का, जैसे कि इस एलपीजी और ये पेपर, कुकिंग गैस जो होती है, केरोसिन ऑयल वगैरह जल्दी से जल जाता है. तो ये एग्जांपल हो गया. तो बच्चों आपने देखा 2 एग्जांपल, पहला है स्लो जो डाइजेशन और रेस्पिरेशन है, दूसरा है, तो पहला है स्लो, दूसरा है रैपिड, एंड थर्ड वन इज दैट इज द स्पॉन्टेनियस कंबस्शन. Spontaneous combustion means the substance burn on its own without application of external heat is known as the spontaneous combustion. इसमें क्या होता है कि जो सबस्टेंस होता है वो अपने जलता है, अपने आप जलता है, कोई भी एक्सटर्नल हीट उसको नहीं दी जाती है. और जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ फास्फोरस अंडरगोज द स्पॉन्टेनियस कंबस्शन आफ्टर रूम टेम्परेचर इन 35 डिग्री सेंटीग्रेड. when it is the ignition temperature. For this reason it is stored in the water
Forest fires are caused sometimes due to this heat, sun or lightning. This is also an example of the spontaneous combustion. तो बच्चों, जो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होता है वो बिना किसी बाहरी आग या बाहरी इग्निशन टेम्परेचर के देने के कारण होता है, जैसे कि फास्फोरस। तो फास्फोरस जो होता है वो निरंतर जलने लगता है, इसीलिए उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर जलने लगता है, इसीलिए उसको कोई भी इग्निशन टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है। दैट इज वाई इट इज स्टोर्ड इन द दिस फास्फोरस दैट इज स्टोर्ड इन द वाटर, पानी में इसीलिए रखा जाता है उसको। और जो फॉरेस्ट फायर होती है, जंगलों में जो आग लगती है, उसमें कोई भी हीट या कोई भी इग्निशन टेम्परेचर नहीं दिया जाता है, वो बिजली की चमक से लगती है या फिर सन के ज़्यादा गर्मी देने के कारण सूखे पत्तों में आग लग जाती है, जिसके कारण वो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन के श्रेणी में आता है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये 3 आपके टाइप हो गए। दीज 3 टाइप्स mainly they are slow, rapid, spontaneous, and now come to next, that is the explosive combustion. Dear students, the explosive combustion, that is a reaction, very fast combustion reaction, and in this a large amount of heat and light get produced and sound are produced. That is called the explosive combustion or explosion. आपको देखना होगा जैसे कोई बम फटता है जब, तो उसको एक्सप्लोजन कहा जाता है। You must have seen that on the lightning the fire crackers large amount of heat on igniting a fire cracker, किसी पटाखे को जब आग लगाते हैं तो वो साउंड के साथ बहुत ज़्यादा हीट और एनर्जी लाइट प्रोड्यूस करता है, और बहुत ही कम समय में, दैट इज इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सच रीजन इज ऑल्सो ड्यू टू द एक्सप्लोजन. This is due to a large amount of gas formed during the that is during the reduction, during the reaction. तो ये जो रिएक्शन होता है पटाखे के अंदर, जब आग जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा गैस बनती है, जिसके कारण which try to escape explosion. Explosion can also take place if pressure is applied the cracker. तो एक्सप्लोजन तब भी होता है जब पटाखे के ऊपर दबाव पड़ता है. जैसे पटाखे को पटक के फोड़ा जाता है तो उससे क्या होता है, उससे एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि उसमें हल्का सा इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है और वो जल उठता है और उसमें बर्स्ट हो जाता है. Dear student, now these are the different types of the combustion, like slow, rapid, spontaneous and explosive combustion. And now let us see how do we control fire. हम आग को कैसे काबू करते हैं इसके बारे में आप जानेंगे. और देखिए, we have learned that the fire is produced the fire will produce that feed on the combustible substances. Oxygen. Fire is useful in many ways but not always, and it sometimes may be dangerous. That may be fatal. Fatal means nuksandeh if it breaks out suddenly in home, office or any public place. To tackle those flames, fire needs to be controlled and put out well in time to avoid further destruction. ज़्यादा नुकसान होने के लिए आग पर काबू पाना होता है. इसके लिए मशीनरी है. The machinery is there and that is called fire fighting machinery, which means to manage the extinguish the undesired fire. कभी कभी बिना इच्छा के जब किसी शहर में, टाउन में आग लग जाती है तो फायर सर्विस
द फॉर्म ऑफ द फायर ब्रिगेड स्टेशन, ऑल शुड नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द सर्विस ऑफ योर सिटी। तो फायर स्टेशन का नंबर सबको पता होना चाहिए, जैसे पुलिस का पता होता है। सो फायर कैन बी पुट ऑफ बाय कंट्रोलिंग एंड टेकिंग अवे वन और मोर एसेंशियल कंडीशंस ऑफ द कंबशन। तो इसमें क्या होता है, दैट इज बाय रिमूविंग द फ्यूल। पहले सबसे पहले फ्यूल को हटा देते हैं, बाय आइदर कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई कट करते हैं, जिससे कि अगर छोटी आग लगे तो उसके ऊपर कुछ भी बोरी या कुछ भी डाल देते हैं, बालू डाल देते हैं। आर बाय ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर बिलो इग्निशन टेम्परेचर, या फिर उसका पानी डालते हैं जिससे उसका इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाए। द बर्निंग मटेरियल सो दैट दे विल नॉट बर्न फर्दर एंड फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बिल्डिंग कैचेज फायर, होल बिल्डिंग इज ए फ्यूल। अगर किसी बिल्डिंग में आग पकड़ लेती है, समझ लीजिए कि पूरा बिल्डिंग जो है फ्यूल की तरह काम करता है। तो बच्चों ये होता है फायर कंट्रोलिंग। एंड नाउ वाटर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। अब आप देखेंगे बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर हैं, लेकिन पानी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। पानी क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि पानी का जो वो होता है टेम्परेचर होता है काफ़ी कम होता है, और जो चीज़ें जलती हैं तो उसमें इग्निशन टेम्परेचर के कारण जलती हैं। और जो फायर ब्रिगेड होती है उसके पास फायर पंप होता है, वाटर कैनन पंप होता है, जिसे इमरजेंसी नंबर डायल करके बुला लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, पानी की बौछार मारते हैं और सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देते हैं उस पर्टिकुलर जगह पर। Thus the fire is extinguished. Fire turns into vapor after getting heated and surround the combustion substances, thereby cutting off the supply of oxygen. इस प्रकार सबसे पहले पानी की बौछार डालते हैं, उसके बाद the fire produced by the burning oil and petrol cannot be extinguished by using water, because water is heavier than the oil and petrol, so it sink below the oil and oil drops burning on the top. इस प्रकार से देखेंगे अगर पेट्रोल और डीजल जल रहा है, कहीं पर तेल जल रहा है और पानी उस पर डालते हैं आप, तो पानी नीचे चला जाएगा, ऊपर से पेट्रोल और डीजल जलता लगेगा, क्योंकि पानी जो होता है हैवी होता है इन सबों से, और ये ऊपर आ जाएगा और जलने लगेगा। द फायर काज्ड बाय द इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुड नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द थ्रोइंग वाटर। पानी बिजली वाले सामान पर जहाँ कहीं शॉर्ट सर्किट लगती है नहीं डालना चाहिए। दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म द हाउस दोज ट्राइंग टू डाउस द फायर। तो पानी जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, आग बुझाने के भी काम आता है, लेकिन इसकी उचित जगह होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ए फायर एक्सटिंग्विशर, ये कैसे होता है, आप इसको ज़रा ध्यान दीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आप जानते हैं कि जो आग जलती है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग जलती है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऊपर उसका ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया जाए, और मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड कोई ब्लैंकेट अगर डाल दिया जाए किसी जलती हुई चीज़ पर, तो वो सीधा समझिए कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऊपर पड़ रही है, ऑक्सीजन कट ऑफ हो जा रहा है और वो फायर को एक्सटिंग्विश कर देगी, फायर को बुझा देगी, आग को बुझा देगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर फॉर फायर विच आर काज्ड बाय द मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन और एनी अदर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का मतलब होता है कि ज्वलनशील पदार्थ, जैसे पेट्रोल, केरोसिन और एनी अदर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस और फायर काज्ड बाय द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। तो इसके ऊपर क्या होता है, इस जगहों पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सटिंग्विशर होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा की जाती है, इस तरह से बना होता है, उसको उल्टा पटकते हैं
और उससे CO2 बनती है जिससे कि फायर बुझ जाती है। तो बच्चों यहाँ तक जो आपने देखा अभी वो डिफरेंट फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे वाटर हो गया लेकिन वो उचित जगह पे, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी अपने सुटेबल प्लेस पे काम करती है, एंड फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, ये देखिए ये फायर एक्सटिंग्विशर्स है, एक्सटिंग्विशिंग फायर विथ फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं आग के ऊपर और वो बुझ जाती है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। ये एक्सटिंग्विशिंग फायर विद वाटर, वाटर कैनन दिया जाता है आग के ऊपर और इस प्रकार से आग बुझाई जाती है। तो ये विजुअल्स हैं, इस विजुअल के आधार पर आप इसको समझ सकते हैं। एंड नाउ द फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम extinguisher are used in flammable liquid fire. The solution of sodium bicarbonate and aluminum sulfate in separate sections mixed when the extinguisher is inverted. जैसे extinguisher को उल्टा करते हैं, that result the mixing of these two chemicals, resulting the foam mixture floats on the burning liquid. तो उस बर्निंग लिक्विड के ऊपर एक फोम जैसा सब्सटेंस निकलने लगता है, विच सप्रेसिंग द फ्लेम, जो कि फ्लेम को बुझाने का काम करता है। अ स्मॉल फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द थ्रोइंग सैंड सॉयल ओवर इट। बालू या मिट्टी भी डालते हैं तो भी आग बुझती है। फॉर एग्जाम्पल, सैंड कट्स द एयर सप्लाई टू द बर्निंग केरोसिन ऑयल, ड्यू टू विच द फायर get extinguished. And when a person clothes catch the fire, the person is wrapped in a blanket to put off the fire because it helps to cut off the oxygen supply and hence the fire is put off. तो बच्चों इस प्रकार से ये जो डिफरेंट फायर एक्सटिंग्विशर है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, टाइप्स ऑफ द कंबस्शन एंड फायर कंट्रोल, ये सारे टॉपिक्स जो है आपको इसमें काफ़ी एलेबोरेटिव है और आपको इसमें थोड़ा ध्यान देके पढ़ने की ज़रूरत है, आपको समझ में आ जाएगा। एंड नाउ बच्चों लास्ट, दिस इज द टॉपिक दैट इज द फ्लेम। आप जानते हैं कि जैसे जब एक फ्लेम जलती है, जैसे ये फ्लेम है, सपोज दिस इज अ फ्लेम एंड दिस इज हैविंग द डिफरेंट जोन्स। आप जब कैंडल जलाते हैं, बर्थडे पे कैंडल जलाते हैं, तो उसमें डिफरेंट जोन बनती है और जो सबसे ऊपरी जोन होती है दैट इज द नॉन ल्यूमिनस जोन। सबसे ऊपरी जोन नॉन ल्यूमिनस होती है, जो कि पीली पीली आपको हल्की जो है रेडनेस दिख रही है। उसके नीचे ल्यूमिनस मिडिल जोन होती है, जो मिडिल जोन होती है वो ल्यूमिनस होती है, वो प्रकाश देती है। और उसके नीचे डार्क जोन होता है जो कि इनर मोस्ट जोन है, एंड ब्लू जोन इज द बेसल जोन, दिस इज द जोन प्रेजेंट एट द बेस। तो ये 3 जोन होते हैं, 4 जोन होते हैं स्पेशली इन द फ्लेम, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम। सो द आउटर जोन दैट इज द नॉन ल्यूमिनस आउटर मोस्ट, मिडिल जोन दैट इज द ल्यूमिनस, एंड द इनर मोस्ट दैट इज द डार्क जोन, एंड ब्लू जोन दैट इज द बेस प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ए कैंडल फ्लेम। इस प्रकार से ये फ्लेम का स्ट्रक्चर है और ये फ्लेम जो है वो आप इसको स्ट्रक्चर को देख करके और समझ सकते हैं। नॉन ल्यूमिनस का मतलब बिना प्रकाश के, सेंट्रल ल्यूमिनस जोन का मतलब दैट इज द इनकम्प्लीट कंबस्शन, ठीक है। तो ये इसलिए होता है कि उन जगहों पर इनकम्प्लीट, जहाँ ब्लू है वहाँ पर इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, जिसके कारण कि प्रकाश नहीं निकलता है। लेकिन जो मिडिल जोन है वो वहाँ पर कंबस्शन कंप्लीट होता है, जिसके कारण प्रकाश निकलता है और इस प्रकार से ये फ्लेम होता है। तो बच्चों इसमें एक पार्ट और होगा वीडियो का, जिसके बाद आपका ये चैप्टर फिर क्वेश्चन आंसर पे आ जाएगा और आप इसको ध्यान से पढ़िए, अपनी कॉपीज़ वगैरह कंप्लीट करते रहिए। सो तब अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड डे।